Very good. Right, minute recording. So I'm recording this lecture as a privacy policy. I'm letting you know that you are being recorded. Okay. So we have a quick recap of what we have done so far. Assessment year, previous year, then the meaning of person. There are 7 categories. Then we did income exempt from tax हमने नहीं किया. We did residential status for an individual. Then we did residential status for HUF, for a partnership firm, for company. In a nutshell, ये residential status के final analysis table है. R and OR if an individual fulfills one basic and both additional, R but NOR one basic and none or one additional, and NR if none basic for individual. For others, we saw this table. Indian companies always resident. Others are resident when wholly in India or partly in India. And a foreign company is resident only if it is wholly in India. Good. After that, in the last lecture, we learned scope of income. Yeah, this is what we learned. So if we divide the income into 2 categories, one is Indian income, one is foreign income, then Indian income is always taxable to all categories, OR, NOR, NR. So effectively, the purpose of learning this residential status is actually only for foreign income. क्योंकि अगर इनकम इंडियन इनकम है तो फिर तो सबको टैक्स पे करना है. फिर हमारे एग्जाम्पल में वो विराट कोहली हो या एबी डिविलियर्स हो या बाइडन हो या ट्रंप हो, everyone who earns Indian income is supposed to pay tax in India, period, full stop. So foreign income, there is a question. Foreign income, R and OR are supposed to pay tax even on foreign income, so taxable. Which means if Virat Kohli goes to UK and earns income there, it is taxable to him. In India, if he is R and OR, NR मतलब से example AB de Villiers. So AB de Villiers, if he has income in South Africa and if he is NR, then South African income is not taxable in India. So foreign income is taxable to R and OR, foreign income is not taxable to NR. Again बात होती है सिर्फ NOR के लिए. NOR के लिए फॉरेन इनकम तब टैक्सेबल है जब वो बिजनेस इनकम हो and it is wholly or partly controlled and managed from India. Otherwise, any other income is not taxable to him. This is what we had learned till the last lecture. Anything else we learned after this? Say yes, say No, no. sir. No. No, sir. Sir, बोलिए बेटा. सर जैसे अभी कोविड टाइम्स में जो फॉरेन में लोग थे वो इंडिया आए थे, बट वो इंडिया से वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, तो वो तो अभी मतलब NOR या R बट NOR के कैटेगरी में आ गए, तो उनकी जो इनकम जो फॉरेन में अर्न हुई तो वो अभी टैक्सेबल हो जाएगी ये ईयर के लिए.
Yes, but I got disconnected. Network issues. I'm back. हाँ बेटा, somebody was asking a question. यस सर। सर जैसे कोई इंडियन 1 या 2 साल पहले, अभी मतलब 1 साल पहले गए थे फॉरेन, एंड देन कोविड के कारण फिर से आ गए, तो वो RNOR है, मतलब जैसे वो कंडीशन, क्योंकि अभी 1 साल वो इंडिया में थे तो वो RNOR हो गए, बट वो जॉब फॉरेन की करते, तो फिर ये ईयर में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा? हाँ देखो, अभी हम कुछ और सीखने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन के आंसर में। वो हम ऐसे भी सीखने वाले थे, जो थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ इज whether that income is taxable in India or not, but finally will they pay tax or not depends on lot of other sections of income tax as well. जैसे मैंने लास्ट टाइम एक पासिंग रिमार्क किया था फॉर समथिंग कॉल्ड DTAA, याद है आपको कुछ? यस सर। तो अगर उस कंट्री ट्रीटी। के साथ, हाँ जी, अगर उस कंट्री के साथ हमारा ट्रीटी है, सो विल नॉट एंड अप एक्चुअली पेइंग टैक्स। समझा? हाँ सर, समझा। But it is definitely taxable if it falls into the purview of whatever we are discussing. But finally, will he pay tax or not depends on lots of other sections. ठीक है, थोड़ा कुछ और क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमने किया क्या? नहीं किया है शायद। सो मैंने आपको, लेट मी डिलीट दिस राइट नाउ, डाउन बिलो। क्या हमने आपको ये जो फोर्थ कैटेगरी है, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, उसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, मिस्टर शाणा, मिस्टर स्मार्ट फ्रॉम बैंड्रा। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है एंड इफ ही इज टेकिंग एनी रेंट आउटसाइड इंडिया, और इफ ही सेल्स प्रॉपर्टी एंड टेक्स money outside India, even then the income is deemed to accrue or arise in India because the property is in India. So these were 2 examples that we did. उसी के एग्जाम्पल कुछ आगे लेते हैं। सो वेर आई स्टे इन बॉम्बे, मेरे घर के बाजू में से मेट्रो जा रही है। ओके, अभी उनका टेस्टिंग चल रहा है, रोज टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग, प्रॉब्ली 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लेट हो रही है मेट्रो सिटी के हिसाब से, पर स्टार्ट हो रही है फाइनली। तो से एग्जाम्पल, किसी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ने जापानीज कंपनी से टाई अप किया है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्टर, that Japanese company has sent their engineers in India. Okay, so the engineers working on metro projects, say example, have come from Japan and they are rendering services in India, but the Japanese company is paying them in Japan. Salary उनको जापान में मिल रहा है। Even then, this section says that income from salary, so let me now copy first, ये इधर लिख दिया, income from salary for services rendered in India. If services are rendered in India, then that is deemed to accrue or arise in India, even if you take money abroad. Now, having said this, say example, government of India may give a special exemption for such projects so that it doesn't become taxable in India for that engineer. So I'm confusing you. The law says कि अगर इंडिया में काम किया है तो वो इंडियन इनकम है और वो टैक्सेबल है, ये लॉ है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नोटिफाई, कैन एग्जाम्प्ट कि ओके ना, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम का है, तो अगर हम वो जापानीज कंपनी को एग्जम्पशन दे दें कि जाइए हम इंडिया पे टैक्स, इंडिया में इस सैलरी पे टैक्स नहीं लेंगे, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। दे विल फाइनली नॉट पे टैक्स ऑन इट। समझा गौरी? यस सर। वेरी गुड। Otherwise, as a rule,
If services are rendered in India, it is Indian income and taxable to all categories of person, OR, NOR, NR, सबके लिए. Next example. If somebody who is staying in US, okay, US citizen, if he or she wants to come to India, what legal procedure they need to do? सवाल है, जवाब दो. वीजा. करेक्ट. उनको वीजा लेना पड़ेगा इंडिया आने के लिए, और उसके लिए वो कहाँ जाएंगे वीजा लेने के लिए? इंडियन एम्बेसी. इंडियन एम्बेसी. करेक्ट, वेरी गुड. तो से न्यूयॉर्क में चले गए वो लोग, इंडियन एम्बेसी में इंडिया आने के लिए वीजा लेने हैं. अब वो जो इंडियन एम्बेसी के जो एम्प्लॉय होंगे वहां पर, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे? यस. यस. जो साइनिंग अथॉरिटी होगा, IFS बोलते हैं उसको, इंडियन फॉरेन सर्विस. IAS तो आपने बहुत सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. उसी का भाई है इंडियन फॉरेन सर्विस. तो इंडियन फॉरेन सर्विस की एग्जाम्स पास करके, यूपीएससी की एग्जाम्स पास करके वहां पे पहुंच गए. So income tax act says what? I will copy from down below. ये कॉपी ऊपर आ गए और पेस्ट. क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. If employer is government of India and employee is citizen of India, then what? Then that income is deemed to accrue or arise in India. देखो ये जब लिखा है, अच्छा कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा बेझिझक. डोंट वरी, डोंट हेजिटेट. ओके, आई विल नेवर एवर इंसल्ट यू फॉर आस्किंग. और ऐसा क्या क्वेश्चन पूछता है, पागल अक्कल नहीं है, ऐसा वैसा हम नहीं बोलेंगे. ओके, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट anytime. Okay, if I know the answer, I'll give you the answer. If I don't know the answer, I'll tell you. I'll find out and let you know. But your job is to ask me. Fourth point. देखो थर्ड का कोरोलरी क्या होता है, उल्टा क्या होता है. अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया में काम किया तो वो इंडियन इनकम है, तो इसका उल्टा मतलब ये होता है कि अगर आउट ऑफ इंडिया काम किया तो वो इंडियन इनकम नहीं है. हाँ या ना? यस सर. यस सर. यस. पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ नहीं रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय है, मेरे ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, so even if that fellow is working outside India, it will still be treated as Indian income and I will collect tax from that income. So this is a deeming provision. मतलब जो normally bare आंखों से ऐसा लग रहा है कि यार ये तो फॉरेन इनकम है, फिर भी ये सेक्शन उसको खींच के इंडियन इनकम के दायरे में लेके आता है. एक और बार रिपीट किया जाए, जो लगता है नॉर्मली कि यार ये तो फॉरेन इनकम है, बट बिकॉज ऑफ दीज डीमिंग प्रोविजन सच इनकम इज ब्रॉट टू टैक्स इन इंडिया. व्हाट इज दैट? सो देयर आर 2-3 थिंग्स. वन इज सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. सेकंड, द रेसिपिएंट is an employee of government of India and is also a citizen of India. ये क्यों ऐड किया है मैं समझाता हूं. से उसी एम्बेसी में कोई क्लर्क होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय तो है, पर वो यूके सिटीजन है. अब क्लर्क को इंडिया से नहीं भेजते हैं. इंडियन सिटीजन, इंडियन लॉ की जरूरत नहीं है उसको जानने की, वो तो सपोर्ट स्टाफ है. जो साइनिंग अथॉरिटी होंगे वो IFS वाले होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस करके गए होंगे. समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? समझ रहा है सर. समझ रहा है. तो एम्बेसी में एग्जांपल कोई सिक्योरिटी का स्टाफ है, वो थोड़ी इंडिया से लेके जाएंगे US में सिक्योरिटी के लिए, तो वहां से लोकली हायर करेंगे.
अब वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय, बट बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, it will not become Indian income. It will not fall in this deeming provision. Deeming provision में कब आएगा? तो दो कंडीशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय एंड इंडियन सिटीजन. Now, did you mark? I am not saying not taxable. What I am saying is that watchman, that security guy, that clerk को जो सैलरी मिलेगा वो फॉरेन इनकम होगा. फॉरेन इनकम अगर होगा तो वो ये इस कैटेगरी में आएगा, फॉरेन अदर इनकम. तो उसे टैक्सेबल हो या ना हो वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे. समझा? हाँ बोलो. Yes, sir. वेरी गुड. एनीबॉडी एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड. तो ये दो और एग्जाम्पल हमने सीखे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के. ये मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में. अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है, पता चलेगा. इसके अलावा भी 2-3 प्रोविजंस और हैं, वो जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको सिखाऊंगा. अभी एक साथ मैं पूरा थियरी नहीं सिखा रहा हूं, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आओगे. ठीक है ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब आपको जो शीट भेजा गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है. तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको ज़रा हम इरेज कर देते हैं डेटा को, so that we can solve it once again with you. सॉरी, हमारा डिवीजन कौन सा है बेटा? आई है ना? हाँ Yes, sir. sir. I division. So, Yes, sir. डिवीजन और आज किसकी मैच है आईपीएल में? बोलो, इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे बच्चे लोग. आज आईपीएल में किसकी मैच है? नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं मालूम. बॉयज लोग तो सब सो रहे हैं शायद. सर नहीं पता है. नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा, डोंट वरी. सर, नाइट राइडर्स एंड पंजाब. हाँ, ये हुई ना बात, नाइट राइडर्स एंड पंजाब. अच्छा, ओके. चलिए, ये सम करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. तो इसमें ना दोनों पार्ट करने हैं. अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें हमने सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस गिना था और फिर फुल स्टॉप लगा दिया था. अब ये क्वेश्चन में, अच्छा, हमने रेसिडेंशियल स्टेटस गिन के फुल स्टॉप लगा दिया था. ये क्वेश्चन में हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पहले ढूंढना है और उसके बाद उसकी इनकम को कंप्यूट करना है बेस्ड ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. तो पूरा चैप्टर है इधर, स्कोप ऑफ इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों. तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढने की कोशिश करते हैं. मिस्टर क्लिंटन ऑफ अमेरिका, डज इट मीन ही इज नॉन रेसिडेंट? No, sir. चेक करना पड़ेगा. करेक्ट, सही पकड़े हो. नहीं, ऐसे थोड़ी पता चलता है, चेक करना पड़ेगा स्टेट डेज से. तो ये उसका पूरा जन्म कुंडली दिया है 7-8 से लेकर 2021 तक. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 22, that is 21-22, his passport shows in India as below. तो आप मुझे बताएं कि 21-22 में he was in India for how many days? $180 days and 9 hours. 181 days and 9 hours.
वाओ ब्यूटीफुल, बराबर जवाब दिया, एकदम मजा आ गया। तो बच्चे लोग कभी कभी 180 बोल देते हैं इनको ऐड करके, पर वो अधूरा जवाब है, आवर्स भी तो ऐड करने हैं। अब ये सिर्फ थियोरेटिकल है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसका अगर टोटल करते हैं तो 33 आवर्स होता है। एंड हमने आपको बताया था कि अ डे इज काउंटेड एज टोटल ऑफ 24 आवर्स। सो वो 33 आवर्स को भी ब्रेक करना होगा, इट विल बी 24 आवर्स, दैट इज 1 डे प्लस 9 आवर्स। तो हमें डेज गिनना है। अब वो 9 आवर्स को फिर छोड़ दो। अच्छा, इसमें मैथ्स भी नहीं होता है, ऐसा नहीं 12 आवर्स से ज्यादा हुआ, 13 हुआ तो एक दिन पकड़ लो, ना ना ना, ऐसा लॉ में नहीं लिखा है। लॉ में सिंपल लिखा है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, फुल स्टॉप। तो 23 आवर्स भी नॉट काउंटेड एज 1 डे। सो इधर मैं लिख लेता हूं 181 डेज। इसका वर्किंग नोट आप बनाओगे कैलकुलेशन शो करने का, ठीक है। इज दिस फुलफिल्ड? नो। बहुत शाना आदमी है ये, एग्जैक्टली 181 डेज रह के उड़ गया वापस। स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर, इज दिस फुलफिल्ड? इज दिस फुलफिल्ड? Yes, Yes. sir. 365 days or more in last 4 years. Last 4 years 365 days or more. Check करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. टोटल कितना होता है बताओ बेटा? टोटल कितना होता है? जाने कहाँ गए वो स्टूडेंट? टोटल कितना होता है लास्ट 4 साल का? 616. 616 days. 616 days, sir. मेरे पास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मेरे पास आंसर रेडीमेड है, तो ऐसे मेरे को परेशान मत करो आप बाय नॉट गिविंग आंसर। हाँ बोल देता हूँ, तो आ गया 616। Is this fulfilled? Yes, it is. So Mr. Clinton is resident in India for previous year 21-22 since he fulfills 61B. अभी भाई साहब ने 61 फुलफिल किया है तो एडिशनल भी चेक करना पड़ेगा। आते हैं नीचे एडिशनल में, रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 preceding previous year। तो चेक करो भाई, पिछले 10 साल में अंदाजन 2 से ज्यादा साल में वो रेसिडेंट है या नहीं है? Yes, yes, sir. sir. है. है. है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये 320 में रेसिडेंट है 1, 252 2, 263, तो हम इधर लिख देते हैं मोर देन 2, बस काउंट करने की पूरी जरूरत नहीं है। मोर देन 2 फुलफिल्ड, यस सर फुलफिल्ड। अब स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर, इसको काउंट करके बताओ बेटा वापस। 100, 112. 1112. ओह एकदम रेडी। 1112, ओके 1112 मैंने काउंट नहीं किया। वर्किंग नोट नंबर 3, is this fulfilled? Yes sir, it is fulfilled. So therefore Mr. Clinton is R and OR for 21-22 since he does fulfill both conditions, since he fulfills, does का कोई जरूरत नहीं है, both conditions under 6-6। कोई शक? No, sir. नहीं, sir. No, पहले sir. कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे का पार्ट करेंगे।
Done, sir. Done, sir. Okay, give me a minute, I'll start. ये एक फॉर्मेट बना के रखिए बेटा, ऐसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मेक दिस फॉर्मेट, I'll explain in a minute. Okay. So this is a statement of computation of income. ये हमें प्रिपेयर करना था, इसके लिए ये करना पड़ता है. रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों ढूंढा हमने? क्योंकि ये ढूंढेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा इनकम उसे टैक्सेबल होगा. अब मिस्टर क्लिंटन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए हैं भाई, आर एंड ओ आर हो गए हैं. तो जब वो आर एंड ओ आर हो गए हैं तो उसे दुनिया में जहां कहीं भी इनकम होता है इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. आई विल रिपीट, बिकॉज ही इज आर एंड ओ आर वी कॉल हिम एक बेचारा, एंड एक बेचारा मीन्स that global income is taxable in India. Again, if you feel that sir this is not correct, ऐसा कैसे दो कंट्री में, तो ऐसा है. That is point number 1. Second is, if India has a treaty with that country, then it may not become finally taxable to them. A businessman will actually first see whether this country has a treaty or not, and then we'll plan his business accordingly. So it doesn't come to him. एक मिनट बेटा, it doesn't come to him as a shock. अरे बाबा दो कंट्री में टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. उनको पता होगा, and all big countries will reciprocate. Then only their मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे कि आप मेरी कंट्री में एग्जाम्पशन दीजिए, मैं आपकी कंट्री को एग्जाम्पशन देता हूँ. तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से इंडिया की काफी सारी कंट्रीज के साथ ट्रीटी है. तो इट डजंट फाइनली बिकम टैक्सेबल, बट ट्रीटी का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सीए फाइनल में आता है, इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे. और टैक्सेबल है या नहीं? तो टैक्सेबल तो है ही. अगर ट्रीटी है तो टैक्स नहीं पे करना है. हाँ जी, प्रश्न पूछा जाए. सर अगर ट्रीटी नहीं बनी हुई है फिर हमें दोनों कंट्रीज में पे करना पड़ेगा ना टैक्स? यस यस, देयर इज सम रिलीफ इन वन ऑफ द सेक्शन 91. तो वो रिलीफ इतना है कि थोड़ा कम टैक्स भरना पड़ेगा. मतलब एग्जांपल दे दूं, अगर उस कंट्री का रेट ऑफ टैक्स हमारी कंट्री का रेट ऑफ टैक्स कंपेयर करके जो लेसर होगा वो टैक्स लेंगे, उतना रिलीफ उसको देंगे हम, ऐसा कुछ तो प्रोविजन है.
सेक्शन 91 में, ठीक है। ओके सर। पर हाँ दोनों जगह भरना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अभी इसकी 5-6 अलग अलग इनकम दी गई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अमेरिका, बर्मा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम बर्मा, मुंबई फ्रॉम अमेरिका, कलकत्ता फ्रॉम मुंबई, कनाडा फ्रॉम अमेरिका। हमें क्या जरूरत है ये सम में? भाई साहब वो आर एंड ओ आर है, तो आप चिंता मत करिए सर, आप सब लिखते जाइए टैक्सेबल टैक्सेबल, क्योंकि आर एंड ओ आर है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया सर। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इधर आप लिखते जाओ सर, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चलो लिख ही देता हूँ, 2 लाख एंड 120। डन, मेरा तो काम हो गया। 720 उसका टैक्सेबल इनकम हो गया। किसी को कुछ डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस फॉर मी? नहीं सर। नो, ये जरा समझा देते हैं। जस्ट एज अ फॉर्मेट लिखा जाता है ये। कंप्यूटेशन ऑफ लीगल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इज द हेडिंग। लीगल स्टेटस, तो यहाँ पे किसी बच्चे ने तो मैरिड लिख दिया था, लीगल स्टेटस, जोक है जोक नहीं। हाँ, इधर यहाँ पे आपको लिखना है वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है। Residential status, which we just found out, R and OR. We are computing income of previous year 21-22, which is assessment year 21-22-23. Okay? तो लिख लो फटाफट। यस। हो जाएगा तो बताइए। हाँ,
हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Now let us solve questions only on scope of income. अभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं. Let me delete all this. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये आपके लिए गृह कार्य है. गृह कार्य समझते हैं? yes sir, homework. Yes, sir. होमवर्क. करेक्ट. अंग्रेजी में होमवर्क बोलते हैं उसको. तो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन 8, 9, 10. 11, 12 and 13 we are going to do now, and I haven't shared the question with you, which I will do today. And let me copy the question right now for you. Where is it from? ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन है. स्क्रीन आपको विजिबल है, दिख रहा है? Yes sir. Sir, हट गया वो भी. हट गया अभी. अब मुझे लगा क्यों नहीं है. वेट करो, एक्सेल एब्रप्टली बंद हो गया है. बोलता है वो पढ़ाई करने का मूड नहीं है, ऐसा बोलता है. महाराष्ट्र में चालू हो रहे हैं कॉलेजेस. आपका होगा मुझे नहीं पता है.
और चालू जल्दी हो जाएगा। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने सालों के बाद आप कॉलेज जाएंगे? 2 साल? 1.5 Sir, years. 18 years. Almost. Oh yes. 18 years. आपने 11th 12th आपके स्कूल में ही था? Yes, sir. ओके गुड। तो फिर ऐसे लिखना फर्स्ट डे इन कॉलेज। Two 23 and here a small change. This is the question. Great. तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा शेयर नहीं किया ना, एक्सेल शेयर ही नहीं किया, क्या बोलते हो? अटेंडेंस भी तो नहीं लिया। कितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे पता नहीं, क्लास में तो 52 हैं। अटेंडेंस सेव हो चुका है और अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपको दिख रही है अभी। तो ये जो है क्वेश्चन है आपका मिस्टर एक्स की, ये इनकम की डिटेल्स है। एंड इफ आई गो टू द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इट सेज फाइंड आउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स इफ he is this or this. So in this question we are not supposed to find out his residential status, but it's a if question. अगर वो ये होता तो क्या होता, अगर वो OR होता तो क्या, अगर वो NR होता तो क्या होता। इन प्रश्नों के उत्तर हमें फाइंड आउट करने हैं। सो हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? तो जो ऊपर लिखा है वो लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लीगल स्टेटस वगैरह, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये 3 चीजें ये कॉपी करने के लिए एक रो और चाहिए। ये हो गया। हो गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल। एक सब जिंदा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, सर। वेरी गुड। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लीगल स्टेटस, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब हमने इधर ही 3 कॉलम्स बना दिए हैं इफ एंड बट के लिए। आर एंड आर होगा तो क्या होगा, आर बट एन आर होगा तो क्या होगा, और एन आर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, आपको कैसे जवाब देना है मालूम है? आपको जवाब देना है टी। अगर आपको लगता है कि तीनों में टैक्सेबल होगा तो ये टेबल जो राइट में हमने बनाया था उसको ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। तो आप जब भी आंसर दें तो सबसे पहले सोचें, फिल्टर कीजिए एक एक चीज को। पहले सोचें क्या ये इंडियन इनकम है। अगर जवाब हाँ में आता है तो बोल दीजिए टी। अगर फॉरेन इनकम है तो एक और सवाल पूछिए, क्या वो बिजनेस है, मैनेज फ्रॉम इंडिया है। अगर हाँ तो TTNT आंसर आएगा, TTNT। अगर ना तो फिर TNTNT। तो आपको ये फाइनल बोलना है TTT, TTNT, TNTNT। सो
Profit from business in Delhi managed from outside India. What do you think? And don't hesitate, give your answer. T. Sorry? So taxable. T. Taxable. Taxable to all, right? TTT. Very good. So the amount is 1,25,000. 1,25,000. Submit. Second, income from business in Nepal, which is controlled from India. बोलिए क्या होगा? Business So TTNT. taxable. TTNT. TTNT. very good. TTNT. तो ये फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में फॉल होता है, तो TTNT इज द राइट आंसर. सो 2 lakh and nearly TTNT. Third, past profit of 7-8 brought to India in previous year 22-23. बोलिए. ये टैक्सेबल नहीं रहेगा तो वो प्रीवियस ईयर मतलब 2007-8 का है तो वो ईयर में नहीं रहेगा. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम सही जवाब. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट टैक्सेबल. We are not saying not taxable. We are saying not taxable in previous year 22-23. भाई इस साल में वो टैक्सेबल नहीं है. अरे मैं गलत लिख रहा हूँ. अरे 21-22. आई एम सॉरी, ये तो राइट था भाई. इन्वेस्टमेंट ईयर 22-23 है ना. हाँ, तो नॉट टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 21-22. ये ईयर में अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं ना तो मुझे बोलना. हाँ, क्योंकि कुछ और बैचेस चल रहे हैं, उसमें कुछ और प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो एट टाइम्स आई मे मेक अ मिस्टेक, तो मुझे जरा रोक लेना. आपको याद रखना है आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है. चलिए नेक्स्ट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन नेपाल. सर TTT मतलब टैक्सेबल तीनों में. So taxable. सही पकड़े हो, एकदम सही जवाब. 1,30,000. टैक्सेबल. So 1,30,000. 1,30,000. Okay. Next, income from agri in Nepal received there. मतलब पहले पैसे नेपाल में मिले हैं, later on remitted to India. So then after receiving it in Nepal, it is sent to India and it is a agriculture income in Nepal. Sir, NT. Sir, it will be taxable. TNT. Taxable. Sir, taxable. ये जो बच्चे So, टैक्सेबल तीनों बोल रहे हैं उनको तीनों का आंसर बोलना है. मतलब ऐसे बोलो आप, नहीं मेरे को समझ नहीं आएगा. TTT आप बोल रहे हैं. TNT. Sir, Okay. TTT. तो देखते हैं. पहली बात, किसी ने तो सबसे पहले बोला नॉट टैक्सेबल, और उन्होंने शायद ये सोच के बोला क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है. एम आई राइट? Yes, sir. But so that rule is for India, not for Nepal, right? करेक्ट. Yeah, exactly. Yes, sir. सो एग्रीकल्चर इनकम वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है. एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होगा तो एग्जम्पशन मिलता है. ये तो नेपाल है, नेपाल इंडिया में नहीं है, वहां तो मोनार्की है, तो एग्रीकल्चर नेपाल में है तो एग्जम्पशन नहीं है. ये पहली बात. सेकंड, क्या ये इंडियन इनकम है? नहीं. No, so that Yeah. is No, not. sir. Correct. This is foreign income. Agriculture is not treated as business in Income Tax Act. So it is foreign other income. Foreign other income, which is TNT. वो रेमिट किया नहीं किया उससे हमें मतलब नहीं है.
अगर रेमिट नहीं भी किया होता, पैसे अगर नेपाल में ही होते, फिर भी यही होता TNT। सो ये अमाउंट है 60,000। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक बारी फॉरेन सर अदर मैं आता है बता दो। ओके, फॉरेन अदर इनकम में क्या आएगा ये बताओ ना। यस सर यस सर। ओके, समवन एल्स वाज सेइंग समथिंग। हाँ सर, वो एक्चुअली आपने जो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वाला एग्जांपल दिया था ना, वो इधर नहीं आएगा फिर? मतलब आपने वो बैंक का बोला था कि बैंक से पहले वो न्यूयॉर्क के बैंक में लिया एंड देन इंडिया में ट्रांसफर किया, तो मैं करेक्ट, उसमें कंफ्यूज हूँ। गॉट दैट। तो देखो उधर ये हमने समझाया था आपको, डीम्ड टू बी रिसीव्ड का वो एग्जांपल नहीं था, वो रिसीव्ड इन इंडिया का एग्जांपल था। डीम्ड टू बी रिसीव्ड का एग्जांपल प्रोविडेंट फंड वाला था। मैंने वो बैंक वाले में ये बताया था आपको कि अगर वो डिविडेंड, ये एग्रीकल्चर इनकम है ना, अगर इधर मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन में, हाँ, अगर मैं ऐसे लिख दूं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल रिसीव्ड इन इंडिया, इफ आई ऐड दिस then this will become taxable। समझा? हाँ सर। पर ये पैसे ओरिजिनली मिले हैं नेपाल में और बाद में इंडिया भेजे गए हैं। अगर इंडिया भेजे या ना भेजे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये है फॉरेन इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर नेपाल में है। अब फॉरेन में दो कैटेगरी है, बिजनेस इनकम है और एनी अदर इनकम है। तो जिन्होंने पूछा सर एनी अदर इनकम समझाओ, उनको ये याद रखना है कि ये बिजनेस इनकम वाला जो कैटेगरी है उनको छोड़ के सब इधर आते हैं। तो ये वाला क्या कैटेगरी है, जहां बिजनेस फॉरेन कंट्री में है और उसे इंडिया से मैनेज किया जा रहा है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल होता है। वरना किसी भी फॉरेन इनकम को इस कैटेगरी में रखेंगे। So therefore this agriculture in Nepal falls here, foreign any other income, which is taxable, not taxable, not taxable. अगर अभी भी डाउट है तो पूछिए, क्या डाउट है? तो वो जो लास्ट पॉइंट है ना इंडियन इनकम का, डीम टू अक्रीव इन इंडिया, उसका एग्जांपल आपने कौन सा दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके एग्जाम्पल तो आज भी दिए, आज भी हमने 4 पॉइंट लिखे। ये देखिए हाँ सर, हाँ। है ना, और भी और 3-4 लिखेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में। So these are all examples of deemed to accrue, where इधर होता क्या है, तो जो असेसी होता है वो ट्रांजैक्शन को ऐसे कलर करना चाहता है कि ये फॉरेन इनकम दिखे, पर ये सेक्शन उसको खींच के इंडिया में लेके आता है कि ना बाबा ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम नहीं है। तुम भले उसको जो भी कलर करना चाहो, हम नहीं मानेंगे ऐसा। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। चल नेक्स्ट, सिक्स्थ क्या है, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। तो ये भाई साहब पहले इंडिया में, हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। सर TTT। ओके सर टी, क्योंकि ओरिजिनेट इंडिया में हुआ है। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर आंसर? टीटीटी, वेरी गुड। तो राइट है। और मैं समझा ये रहा था कि वो पहले भाई साहब इंडिया में काम करते थे और अभी रिटायर होके वो नेपाल चले गए हैं, वहाँ पे रहते हैं हिमालय के नज़दीक, और उन्हें पेंशन मिल रहा है। So because originally the services were rendered in India, it is treated as Indian income, and if it is Indian income, it is taxable to all categories. So 20,000, 20,000 and 20,000. Next, interest on fixed deposit with a bank in India. सर TTT।
So TTT. सर टीटी So TTT. both these income, ये दोनों कुछ पैसे अब्रॉड में लिए गए हैं, कुछ पैसे इंडिया में लिए गए हैं। सर जो इंडिया में लिए गए वो टीटीटी है। So both are TTT because they are deemed to be accrued in India. Absolutely right. देखो received in India is received in India, वो तो टीटीटी होगा ही। received abroad तो इंडिया वाले छोड़ने वाले नहीं है। आपने अब्रॉड में भी अगर इनकम लिया है पर प्रॉपर्टी यानी कि एफडी किधर था, एफडी इंडिया में था, तो इनकम इंडिया में जनरेट हो रहा है, अक्रू हो रहा है इंडिया में। Though you are receiving abroad, it will still be treated as Indian income and therefore it will be TTT. किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम, नहीं है तो मैं लिख लेता हूं। This is 5,000 and this is 4,500. Next, dividend on shares of a foreign company. जैसे एग्जांपल मैंने Amazon इनकॉर्पोरेशन पे पैसे लगाए, मतलब शेयर्स खरीदे हैं और उस पे मुझे डिविडेंड मिला। थोड़ा डिविडेंड अब्रॉड मिला, थोड़ा डिविडेंड इंडिया में मिला। सो मैं बात करता हूं पहले रिसीव्ड इन इंडिया की। जो डिविडेंड इंडिया में मिला है वो तो इंडियन इनकम है, और अगर वो इंडियन इनकम है तो इंडिया में टैक्सेबल है। बात खत्म हो गई। अगर वो फॉरेन इनकम है, रिसीव्ड अब्रॉड इज अ फॉरेन इनकम and it falls into foreign other income. Foreign other income में it will be taxable, not taxable, not taxable. तो ये हमारा टोटल इनकम आ गया ऑटोमेटिकली। अगर वो आर एंड ओ आर हैं तो उन्हें इस अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा 571 पे। अगर एन ओ आर है तो ये अमाउंट पे, और अगर एन आर है तो ये अमाउंट पे। किसी को कुछ डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं है तो सॉल्यूशन कॉपी करो। मैं म्यूट पे हूं, हो जाए तो मुझे बताओ। I'll be back in a minute and then I will be on mute, so you can ask me any doubt if you have.
Yes, I am back. If you have any doubts, you can ask me. And if you complete it, let me know so that we go ahead to the next question. सर बोल बेटा. सर रेसिडेंशियल स्टेटस आर एंड आर तो नहीं लिख सकते हैं? Sorry? जो आपने लीगल स्टेटस के नीचे लिखा है ना रेसिडेंशियल हाँ स्टेटस, हाँ हाँ, वो निकाल देना पड़ेगा ये क्वेश्चन में. यू आर राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन में तो 3 अलग अलग सेक्शंस है ना, तो वो निकाल देना पड़ेगा. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट. Let me know once done, beta. Check totaling also. आप क्या कर रहे हो गया है बाकी है अभी भी? सर अब हो गया. ओके, हाँ एनीबॉडी सर, एल्स? मेरा तो हो गया. चलो ठीक है, ग्रेट. So now let me share question number 12. For that, let me copy this to a fresh page. Create a copy. Question number 12. Let me remove this. Let me delete this. Okay. Let me go to question 12. सिमिलर क्वेश्चन है बेटा. 6-7 अलग अलग टाइप की इनकम दी गई है. फर्स्ट, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. बोलिए. टीटीटी. टीटीटी. नेक्स्ट, अच्छा लिख लेना भाई, टीटीटी. तो ये हो गया आपका 11,000 टीटी. नेक्स्ट, इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम. सर टीटीटी. TTT. सर टीटीटी. टीटीटी. सही बात है, एकदम बराबर.
इंडिया का नमक खाया है, इंडिया में टैक्स तो भरना पड़ेगा, टीटीटी। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, सर TTT। TTT. Sir, TTT. करेक्ट, करेक्ट। दोनों इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो जो इनकम है वो इंडिया में जनरेट हुआ है, टीटीटी, टैक्सेबल टू ऑल। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन पेरिस, Sir, TNT. TNT सर TTNT। टीटीएनटी और टीएनटीएनटी में टी अभी एन रेस चल, टीएनटीएनटी, ओके। TNT। और TTNT टीटीएनटी, ओके। तो जिन बच्चों ने टीटीएनटी बोला है उनके लिए सवाल, और सवाल ये है कि क्यों, व्हाई इज इट टीटीएनटी? क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, तो अगर वो रेजिडेंट है तो वो एक तरह से इंडिया से ही सैलरी अर्न कर रहा है ना। ओके, क्या ऑपरेट इंडिया से होना चाहिए? सो ऊपर फॉरेन इनकम की ना फर्स्ट कंडीशन है ना, फॉरेन बिजनेस ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो अगर वो रेजिडेंट, हाँ, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो इंडिया से ही एक तरह से सैलरी अर्न कर रहा है ना। हाँ, ये लाइन वापस पढ़ो बेटा जरा, ये क्या क्या कह रहे हैं उधर? विच इनकम आर दे टॉकिंग अबाउट? आपने जो बोला वो सही बोला, और आपने जो कंक्लूड किया ना उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, सुन के जवाब दे। ये जो मिस्टर अभिजीत हैं, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट है। वो जॉब कर रहे हैं ना, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन पेरिस, सो ही इज वर्किंग इन पेरिस। तो ये बिजनेस इनकम नहीं हुआ ना, ये एनी अदर इनकम हुआ। हमने आपको बताया था दैट एनी इनकम दैट अ पर्सन अर्न्स, उसको 5 अलग अलग हेड में डिवाइड किया गया है। सो पहला हेड है सैलरी, सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है बिजनेस, फोर्थ है कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ है अदर सोर्सेस। तो ये भाई साहब बिजनेस कर रहे हैं क्या? नो सर। नो। So it will fall under foreign other income. It will not fall here. So foreign other income is taxable, not taxable, not taxable. समझा? यस सर। Very good. Last. Income, sorry, second last. Income from agri in Nepal. बोलिए। सर TNT Correct. Taxable, not taxable and not taxable. ये भी सेम होगा, फॉर अदर इनकम की कैटेगरी में आएगा। The last one, income from business in UK, controlled from India. Business in UK, controlled from India. सर TTNT TTNT। TTNT. TTNT. So if he is R&R, his income is 81, R but NOR 52 and 36. कॉपी करो, ऊपर वो नाम लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वगैरह, और जैसे हो जाता है मुझे बताओ। हाँ,
Let me know once done, beta. Is it done? So just 2 minutes. Just 1 Okay. minute. Yes, sir. Okay, no problem. I'll wait. Is it done now? Yes, sir. done. Great. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. सारे सिमिलर क्वेश्चंस ही होंगे. कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे. Mr. Nishu had the following income during the previous year ended 31st of March 2022. First, professional fees received in India for 3 months. So TTT. TTT, very good. Kitna, how much? 9,000. नहीं 9,000 into 3 करेंगे क्या? हाँ, मेरे को मालूम ही था तू ये गड़बड़ करने वाली, इसीलिए मैंने पूछा. ये देखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल फी 12 महीने का मिलना है. आई विल रिपीट, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 12 महीने हमने काम किया है. दे आर ओनली सेइंग वी रिसीव प्रोफेशनल फीस फॉर 3 months. देयर इज नो इंडिकेशन दैट वी हैड वर्कड फॉर 12 months. समझा नहीं समझा? समझा सर. तो जो दिया है वही फिगर लिख देंगे सीधा, ऐसा प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे. 3 months का 9,000 तो 12 का कितना, ऐसा नहीं करेंगे. नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड इन यूनाइटेड किंगडम for services rendered in India. TTT. Sir, TTT. करेक्ट है. इंडिया में सर्विसेज रेंडर किया है, एंड अब तो हम लोग गुलाम नहीं है यूके में, तो भाई इंडिया इंडिपेंडेंट है.
तो इंडियन इनकम है ये, और तीनों केसेस में ये टैक्सेबल होगा 8,000. Income from business in Bangladesh and controlled from India. This controlled from India. TTNT. So TTNT. TTNT. सही जवाब TTNT. बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, सो 7,000. TTNT. Income from agri in Indonesia. TNTNT. TNT. आंटी आंटी सुनाई दे रहा है नहीं? You're right. TNTNT. Next one, fifth. Income received in Paris in respect of securities in a French company. TNTNT. Very good. TNTNT. TNTNT. Is that 5,000? Yes, 5,000. Next. Amount brought into India out of past untaxed profit in Germany. तो ये ईयर में नहीं लगेगा, बिकॉज जो पास्ट वाला है तो फिर वो जो ईयर का था उसमें करेंगे. Very good. Not Right. taxable in 21-20. Perfect है. Not taxable in previous year 21-22. Very good. तो हमारा आंसर तो आ गया 35, 24, 17. आपने ऑब्जर्व किया तीनों क्वेश्चन में इनकम जो टैक्सेबिलिटी वो ऐसे ग्रेजुअली कम हो रही है. He has to pay highest tax, then this, हाँ and सर. then the least amount of income will be in case of NR. कॉपी कर लो बेटा, और कुछ पूछना है तो पूछो. सर ये क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर दीजिए.
डन हो गया? हाँ सर। हाँ यस सर। चलिए फिर आगे जाते हैं। तो ये हमने 3 सम्स किए स्कोप ऑफ इनकम के। आई विल श्योरली सेंड यू द पीडीएफ। वो डीम्ड टू अक्रू जो आज स्टार्टिंग में समझाया, उसमें कुछ एडिशन करते हैं आप। सो एक एग्जाम्पल है, हाँ, बिफोर देन वी विल राइट इट हियर। एग्जाम्पल है एक आर एंड ओ आर है। आर एंड ओ आर का नाम है अमोल, और उसका एक फ्रेंड है जो एनआर है। एनआर यूएस में रहता है, काफी साल से गया है, स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अमोल ने कॉमर्स लिया, वो इंडिया में रह गया। उसका फ्रेंड था अनमोल। अनमोल ने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया और यूएस चला गया इंजीनियर बन के। तो डॉलर में पैसे कमा रहा है। अमोल को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई बिजनेस के लिए। अमोल भी बिजनेसमैन है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसे लोन की जरूरत पड़ गई अमोल को। तो अमोल ने लोन लिया। किससे लोन लिया? बोलो बोलो। अनमोल से। अनमोल से लोन लिया, सही बात है। अमोल ने लोन लिया अनमोल से, और वो पैसे को यूज किया। रे कहां पे यूज किया? यूज किया इंडिया में। यूज किया इंडिया में, और यूज करने के बाद या एज पर द अग्रीमेंट इंटरेस्ट पे किया। अमोल ने अनमोल को इंटरेस्ट पे किया। ये अनमोल भाई साहब को इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो डॉलर में पे करेंगे। यस नो? हाँ सर। यस। हाँ, तो अनमोल के बैंक अकाउंट का डिटेल ले लिया, आरबीआई के कुछ फॉर्म्स फिल करने थे वो कर दिए, और अनमोल के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हमारे बैंक के थ्रू। तो इंटरेस्ट पेड इन यूएसडी, तो अनमोल के अकाउंट में पैसे जमा हो गए। अनमोल खुद कौन है? एनआर है। हाँ सर। हाँ जी। उससे इंटरेस्ट कहां मिल रहा है? यूएस में मिल रहा है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो क्या आप इस पे टैक्स लेना चाहेंगे, इस ट्रांजैक्शन पे, इस इंटरेस्ट पे? यस सर। Yes, sir. Yes. So therefore the law has made it as a provision under the head deemed to accrue income, because from a naked eye it seems ये foreign income है तो foreign income, क्योंकि received in India है नहीं, deemed to be received और accrued में भी नहीं आएगा। तो ये deemed to accrue के सेक्शन में उसके डाल दिया है। डीम टू अक्रू का पर्पस क्या है? ये सेक्शन का पर्पस क्या है? कौन बताएगा? मैं सर। किससे बात कर सर रहे हो भाई? वो इनकम हाँ बोलिए। ईशान हाँ बोल। सर वो इनकम जो ऐसे दिखने में तो बाहर की लगती है पर वो है अपनी है इंडिया की, इस पर वेरी टैक्स गुड, लगना चाहिए। वेरी गुड। तो दिखने में तो बाहर की दिख रही है, पर वो इंडिया में उस पर टैक्स लगना चाहिए, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया दैट इफ एनी मनी इज बोरोड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, इफ एनी मनी इज बोरोड
and used in India, then interest paid deemed to accrue or arise in India. Simple. तो ये केस में ये जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है अनमोल को, वो इंडियन इनकम हो जाएगा। क्यों इंडियन इनकम हो जाएगा? क्योंकि वो ये डीमिंग प्रोविजन में डाल दिया गया है। और इसमें होगा या नहीं वो किस चीज पे निर्भर है? इट डिपेंड्स ऑन विच कंडीशन। सपोज हाँ जी, बोलो बेटा, क्या बोला आपने? नहीं सर, मतलब आप बोल रहे हैं ना कंडीशन कि वो अमोल आरएन ओ रहना चाहिए और अनमोल एनआर रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है ना? नहीं 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 नहीं। आप एग्जाम्पल तो सही समझे, पर अभी मैं क्या पूछने चाह रहा हूं कि ये डीम्ड टू अक्रू में कब फॉल होगा? तो जब पैसे इंडिया में यूज किए हैं ना, तब वो डीम टू अक्रू में फॉल होगा। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अनमोल कौन है मुझे नहीं जानना है, निकाल दिया मैंने अनमोल का रेसिडेंशियल स्टेटस, अमोल का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिया। अगर पैसे बोरो किए, अमोल ने पैसे बोरो किए अनमोल से, और वो पैसे उसने लगाए हैं, एग्जाम्पल है समझाने के लिए, अफगानिस्तान में। क्या बात करता है, बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। अफगानिस्तान में पैसे लगाए हैं अमोल भाई साहब ने, बिजनेस है उनका वहां पे, एंड सेम इंटरेस्ट पे किया है अनमोल को यूएसडी में। अब बात यह है, क्या इस इनकम को, अनमोल की ये जो इनकम है, अनमोल की इनकम अनमोल के लिए है, तो हम अनमोल के एंगल से सोच रहे हैं कि ये इंडियन इनकम है या नहीं है। तो ये एग्जांपल में, बिकॉज द मनी बोरोड बाय अमोल is used by him outside India, it is not Indian income. ना बच्चे गलत सुन लेते हैं, मैंने ये नहीं कहा it is not taxable, मैंने ये कहा it is not Indian income. ये deemed to accrue क्या डिसाइड करता है? deemed to accrue ये डिसाइड करता है कि ये इंडियन इनकम है या नहीं, बस। टैक्सेबल है या नहीं वो तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है। ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, समझ आएगा। यस सर। दो जन को तो समझ रहा है भाई। तो ये डीम टू अक्रू पे वापस रिवाइज करते हैं। इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड इन इंडिया, देन इंटरेस्ट पेड is deemed to accrue in India. इसका उल्टा, that if money is borrowed but used outside India, then it is not deemed to accrue in India, and therefore it will become foreign income. अब अनमोल को ये वाली इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, that depends on his residential status. If he's R&O, it will be taxable, otherwise it will not be taxable. I want one person to repeat what I had explained, both पहले वाला example, दूसरे वाला, दोनों. Please go ahead. So in simple terms, if the money which has been borrowed is used in India, then it's an income deemed to be accrue or arise in India. But on the other case, the money borrowed is used outside India, it will not be deemed to accrue or arise in India. Very good. Very simply said. तो ये डीमिंग प्रोविजन का एक और सेक्शन है, और करते हैं। यही क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन डाल दिया उन्होंने। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
बहुत चालाक है। वो कहते हैं मनी इज बोरोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है तो यूज कहीं पे भी किया गया हो, हमको चाहिए ही नहीं, पता ही नहीं करेंगे हम यूज कहां किया। Interest paid will be treated as deemed to accrue in India, irrespective of the use of money, whether money is used in India or whether money is used in Afghanistan, doesn't matter. If the borrower is government of India, then the interest that they pay is taxable in India. तो जो भी रेसिपिएंट होगा, वो रेसिपिएंट के लिए वो जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। कोई शक, कोई सवाल? नो सर। वेरी गुड। सर बोलिए। सर सेकंड केस वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ जी। सेकेंड केस में उन्होंने कहा है अगर बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देन से एग्जांपल हमने बोरो किया $100 million for some project, government borrowed, okay, for laying metro train or bullet train. So on that money, interest that they will pay will be treated as Indian income. Now the two examples that I gave was investment done in India. Say example change. इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में, और एक्चुअली किया है, इफ यू नो, आई थिंक 3 to 4 years बैक मोदी जी हैड गॉन टू अफगानिस्तान और उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया, न्यू बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया फॉर देम। तो इंडिया वर डूइंग लॉट ऑफ activities there of infrastructure development, but now because of the recent development, India may continue those incomplete projects or may have to give up. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर पैसे बोरो किए हैं तो वो इंडियन इनकम होगा। द इंटरेस्ट दैट गवर्नमेंट पेज विल बी इंडियन इनकम, पीरियड, फुल स्टॉप। यूज और उसमें फिर टैक्स लगा जाएगा। हाँ, इसीलिए तो इंडियन इनकम ट्रीट कर रहे हैं ना, कि एक बार इंडियन इनकम ट्रीट करेंगे तो फिर उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है? यस सर, गॉट। वेरी गुड। तो अभी 10-12 मिनट बाकी है। आई डोंट विश टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन और लीव इट इनकम्प्लीट। तो मैं म्यूट पे हूँ, तब तक मैं ये पीडीएफ वगैरह बना के आपको भेज देता हूँ अभी, सो दैट आपके पास वो क्वेश्चन पेपर्स रहे। ओके, मैं म्यूट पे है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। Sir, but doesn't it sound a bit unfair? For For the last sixth point, like the government is borrowing funds. For example, it's for the development of the own country. तो जैसे मीन अभी मुंबई बुलेट ट्रेन बन रही है, तो उसके लिए the Japanese banks are paying most of the sum as a loan. So the interest charged will means the government is also means they pay the interest, but they are taking a sum from the interest, saying that this is the tax which you are collecting from it. yes. So principally it is taxable, but as I said in the beginning, if say government of India wants funds very badly and the payer, आपको पता है आईसीसी और बीसीसीआई में अभी बहुत लीगल टसल चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पूछो क्यों? क्यों सर? जैसे अगर आईसीसी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंडिया में होस्ट करता है तो जो रेवेन्यू आईसीसी को मिलता है उस पे आईसीसी हैज टू पे टैक्स इन इंडिया।
because that revenue is generated from a match in India. ठीक है? तो ICC is pressurizing BCCI in turn to pressurize government to make it exempt. So government of India does have a power to make it exempt. Income Tax Act makes it mandatory कि ये taxable है. पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेकिंग टू योर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जापान गवर्नमेंट का या जापानीज कंपनी का क्या बोलते हैं सपोर्ट चाहिए, तो वो ये जब प्रपोजल देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब वो प्रपोजल में लिखेंगे कि हम जो इंटरेस्ट आपको पे करेंगे उससे हम इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर देंगे. समझ रहा है? Yes, sir. And if they do it, then it will finally not become taxable. But the section says it is taxable. Whether to exempt or not is their prerogative. So by default, it is not exempt under the act right now. By default, it is taxable, but government can exempt it. Clear? Okay, understood, sir. Yeah.